So there is a lever which is pressing down on a stepped pulley, which has got two steps. The first step of the pulley is 50 millimeter in radius, and the larger step is 80 millimeter. A string or a thread is wound around the smaller pulley, and from it, a weight W is suspended. This force P is pressing down at the tip of the lever, and we have to find out what is the maximum load W that can be supported by simply pressing down on the lever here. So we are basically stopping the pulley from rotating simply because of the presence of friction here. So given the constant value of force here, you have to find out what is the maximum amount of weight that you can suspend at this end. For that, we had decided that this is a problem of equilibrium, simple equilibrium. Nothing is moving because you have applied the maximum amount of weight that you could apply here, that the friction at this point could sustain without slipping. So this becomes a problem of equilibrium, and your equations of equilibrium are totally acceptable here, or rather, they are applicable here. So what we did was, once you understand that it is a problem of equilibrium, you go on to make the free body diagram of all the components that are available in your problem. So there are two components, as you can see. First component is the lever, and the second component is the combined stepped pulley. You cannot take both the pulleys separately as components because these two are part of one single object. They are not separate. It's like this, coming out like this. This is one set compound pulley. Anyway, now the next decision that you have to take after recognizing the fact that it is a problem of equilibrium is that which component should be taken up for drawing the free body diagram. First, should you make the free body diagram of the rod, or should you make the free body diagram of the compound pulley? Now, since you have to find the unknown variable that you are after is W, and since that W is being applied at the compound pulley, it makes a little bit of sense that you should go for construction of free body diagram of the compound pulley first. So this is what we started with, free body diagram of the step pulley or compound. Obviously, weight W is acting downwards. So this has been applied here, weight W. And obviously we can see that there is a force with which the lever is pressing the compound pulley at the top end here. So I decided to name it as R1. You can choose any other variable name also, because if you think that R1 somehow indicates a reaction sort of force, and you don't think that it is a reaction, it is a pressing force, you can use any other terminology also. It's your choice. And then we had decided that the pulley wants to rotate in this direction, but the pressure and the friction at this point is preventing it from rotation. Or in other words, the tangential motion that is impending on the disc at the point of contact is like this. इस तरीके से tangentially इस पुल्ले का टॉप पॉइंट मूव करना चाहता है, लेकिन इसको मूव होने नहीं दिया जा रहा, तो इसका मतलब है there is some opposing force at this point exactly opposite to this, and we all know that this can only be the frictional force. So you drew the frictional force in the opposite left hand side direction. So these three forces are self explanatory. ये तीन फोर्सेस तो आप कोई भी गेस कर सकते हैं.
जो आप गेस नहीं कर सकते वो कौन सी चीज है? दैट इज दिस R2 और ये R1। ये चीज आप गेस नहीं कर पाओगे। इतना तो अपन ने फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया। अब इसके आगे वन क्वेश्चन दैट यू कैन आस्क मी इज कि हमें ये कैसे पता लगेगा कि भाई इस तरह की फोर्सेस कहीं पे लग रही है, हम इसको गैस कैसे करेंगे? ऐसे कितनी प्रॉब्लम्स हमको सॉल्व करनी पड़ेगी जबकि हमको ये गारंटी से समझ में आने लग जाए कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी फोर्सेस गारंटी से आती है। अभी इस प्रॉब्लम में तो मैंने आपको लॉजिक समझा दिया था पिछली क्लास में, सो यू विल से कि ठीक है इसमें समझ में आ गया। अब आप कोई तीसरी चौथी और कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स लोगे तो हाउ डू वी नो कहाँ कहाँ पे कौन कौन से रिएक्शन आ रहे हैं? सो इट्स सिंपल। हर केस में आप सिर्फ ये देख लेना कि इक्विलिब्रियम में अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों डायरेक्शंस में ओपोजिंग फोर्सेस दिखनी चाहिए। आपको फोर्सेस का पता हो चाहे नहीं पता हो वो अलग बात है, लेकिन ओपोजिंग फोर्सेस होनी चाहिए। अब आपने अभी तक जो फ्री बॉडी डायग्राम बनाया है इसमें देख करके बताओ, क्या इस करंट फिगर को देख करके आप कह सकते हो ये बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी? एनीबॉडी? दो फोर्सेस R1 भी नीचे को प्रेस कर रही है, W भी नीचे को एक्ट कर रहा है, तो भैया ये इक्विलिब्रियम में कैसे होगी? इन दोनों फोर्सेस के चलते तो ये डिस्क नीचे को चल पड़ेगा। समझ रहे हो मेरी बात? बोलो भाई, कोई सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है? यस सर। सही है ना? तो एक ओपोजिंग फोर्स अपवर्ड साइड में तो लगनी चाहिए ना। अब वो कहाँ लगेगी? और ये मैंने आपको समझाया था कि all the pulleys have to be supported with the help of a shaft at some point। एक शाफ्ट का सपोर्ट उसके सेंटर पे आता ही है। तो आपकी जो कंपाउंड पुली बनी हुई है वो भी एक सेंट्रल शाफ्ट के ऊपर सस्पेंडेड है। इस तरह से ये पुली, ठीक है। और ये जो स्पॉट सेंटर में देख रहे हो, ये स्पॉट ही है आपके शाफ्ट की सेंटर लाइन। तो ये पुल्ली को, ये दो फोर्सेस जब नीचे को धक्का देगी तो ये जो शाफ्ट है इसको नीचे जाने नहीं देगा, और इन अदर वर्ड्स यू कैन कॉन्फिडेंटली पुट अ वर्टिकल अपवर्ड रिएक्शन व्हिच इज प्रिवेंटिंग द डाउनवर्ड मोशन ऑफ द पुल्ली। तो ये तो आपने कॉमन लॉजिक से बना दिया। अब आपने R1 तो यूज कर लिया है टर्मिनोलॉजी, सो लेट अस यूज R2। एक दूसरा रिएक्शन है ये भी, so let us name it as R2। Now look at the horizontal equilibrium condition। आप ये क्लेम कर रहे हो कि ये पुली इक्विलिब्रियम में है, तो अगर एक सिंगल फोर्स लेफ्ट साइड को लग रही है और कोई फोर्स नहीं लग रही तो ये कोई इक्विलिब्रियम थोड़ी होता है। देयर हैज टू बी सम अपोजिंग फोर्स। अब ये लेफ्ट साइड को अगर किसी चीज से पुली को खींचा जाए तो इसको अपोज करने वाला एलिमेंट क्या होगा? वंस अगेन द अपोजिंग एलिमेंट विल बी द सेंट्रल शाफ्ट। आपने अब इसको इस तरह से फोर्स दिया, आप इसको एक साइड को खींच रहे हो, तो ये जो शाफ्ट है ये इसको उस तरफ को एक फोर्स देगा इसका मोशन को प्रिवेंट करने के लिए, तभी जाकर के इक्विलिब्रियम में होगी। तो अब और कोई सपोर्ट तो है नहीं इस पुली को, इस पुली का जो सपोर्ट है वो ये सेंट्रल शाफ्ट ही है। तो जितनी भी रिएक्शंस डेवलप होंगी वो सारे शाफ्ट पर ही डेवलप होंगी। ये भी एक सोचने का तरीका है। तो आपने पहला तो लॉजिक ये लगाया कि R1 और W दोनों नीचे को हैं, तो इसको इक्विलिब्रियम में लाने के लिए कहीं ना कहीं कांटेक्ट पॉइंट पे एक अपवर्ड फोर्स होनी चाहिए, सो यू पुट R2 देयर। नाउ अप्लाइंग द सेम लॉजिक, अगर एक लेफ्ट साइड की फोर्स F फ्रिक्शन मौजूद है तो इसको इक्विलिब्रियम में लाने के लिए कोई ना कोई फोर्स इधर को एक्ट करनी पड़ेगी, तो यू नेम इट एज। एंड नाउ वी हैव सक्सेसफुली मेड द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द पुली। अब इससे ज्यादा अपन को और कोई फोर्स इसमें नहीं मिल रही। देयर आर नो अदर फोर्सेस एक्टिंग ऑन द पुली। अच्छा, ऑब्वियसली देयर कुड हैव बीन वन मोर फोर्स। कोई बता सकता है कि अगर इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए तो इसमें एक फोर्स और आ सकती है? कोई गेस कर सकता है कौन सी फोर्स है? लुक एट दिस। प्रॉब्लम को एक बार पढ़ लो और उसके बाद बताओ कि इसमें, इसके फ्री बॉडी डायग्राम में एक फोर्स और आ सकती थी।
कौन सी फोर्स है? आपने कौन कौन से बना लिए ये देख लो। फ्रिक्शन, डिस्क पे लग रहा डाउनवर्ड प्रेशर, शाफ्ट ऑफ द डिस्क का अपवर्ड रिएक्शन, और शाफ्ट ऑफ द डिस्क का राइट साइड रिएक्शन, और धागे के कारण नीचे को लटकी हुई वेट। और कौन सी फोर्स इसमें बनाई जा सकती है अगर डेटा दिया हो तो? एनीबॉडी? नो सर। नई आइडिया लग रहा, और कोई फोर्स नहीं है? अगर मैं डिस्क का मास दे दूं तो? आपकी जो कंपाउंड डिस्क है वो किसी मटेरियल की तो बनी ही है ना, यस सर। तो इसका मास दे दूं तो? ये डेटा इस प्रॉब्लम में गिवन नहीं है। नीचे एमजी लग जाएगी। mg लग जाएगा, वो कहाँ पे लगेगा? इस फ्री बॉडी डायग्राम में कहाँ पे ड्रॉ करोगे mg? सर सेंटर पे उसके। बिल्कुल यही सेंटर पे नीचे को आ जाएगा। ठीक है। यस सर। बट सिंस देर इज नो मेंशन of the weight of the compound pulley itself, so you ignore that force. इन्होंने लीवर के वेट को तो इग्नोर करने को बोल दिया है, निग्लेक्ट द वेट ऑफ लीवर, लेकिन इन्होंने वेट ऑफ डिस्क को इग्नोर करने की बात नहीं की या फिर करना भूल गए। तो ऐसा होता है। यू कैन एक्सपेक्ट मिस्टेक फ्रॉम द पेपर सेटर ऑल्सो, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। ये देखो आपके पेपर पे एक डिस्क्लेमर लगा हुआ है हमेशा। एनी डेटा you feel missing suitably be assumed and stated clearly। यानी इन्होंने तो अपने हाथ यही धो लिए। they have washed their hands of all the possible sins in the paper। उन्होंने बोला कि भाई हमसे कोई भूल चूक लेने देने हो जाए तो तुम ही अज्यूम कर लेना, और जो अज्यूम कर रहे हो वो क्लियरली स्टेट कर देना, बस आगे हम देख लेंगे। तो दे ऑलवेज पुट अ डिस्क्लोजर लाइक दिस, इस तरह का एक क्या बोलते हैं डिस्क्लेमर लिख देते हैं ये कि भाई गलती हमसे भी हो सकती है, आप अज्यूम कर लेना। तो अब आप इस केस में अज्यूम क्या करोगे? अगर मास दिया ही नहीं हो तो मास इक्वल टू 2 kg अज्यूम करोगे क्या कुछ भी मन से? नो सर। आपको कुछ नहीं करना है, क्यों? क्योंकि आफ्टर अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस विथ पुलीज डिस्क्स, इन सब चीजों की प्रैक्टिस के बाद अपन ने अधिकतर क्वेश्चनों में क्या सीखा है कि पुलीज के मास को इग्नोर कर देते हैं। तो आप यहाँ पर अगर अज्यूम करते हो तो m इज इक्वल टू 2 kg नहीं अज्यूम करोगे, m इज इक्वल टू 0 kg अज्यूम करोगे। दिस इज द राइट एजम्पशन। ठीक है। तो आप इसमें सिर्फ एक स्टेटमेंट लिख देंगे, निग्लेक्टिंग द वेट ऑफ पुलीज द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द पुली इज एज शोन हियर। ठीक है। तो आप अपने एग्जाम में कैसे लिखोगे? एफबीडी ऑफ स्टेप्ड पुली, और यहां लिख दो चाहिए तो निग्लेक्टिंग सेल्फ वेट, यानी कि पुल्ले के खुद का वेट अपन इग्नोर कर रहे हैं। देयर इज सम प्रॉब्लम इन द इंटरनेट कनेक्टिविटी। आपको आवाज आ रही है कि मेरी? यस सर आ रही है। आइए सर। सर चले गए क्या? एक सेकेंड होल्ड करो, आई एम हियर। मैं इसका ये जो स्क्रीन प्रेजेंटेशन है इसको थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम आ रहा है, ओके सर। चेकिंग इट आउट।
अब दिख रहा है क्या आपको? कैन यू सी? Yes, sir, दिख रहा है. So you simply have to write in your paper neglecting self weight of the pulley. बस इतना सा लिख दो. And now this is your free body diagram. ठीक है. अब फ्री बॉडी डायग्राम तो बना लिया अपन को. वेट की मैक्सिमम वैल्यू पता करनी है. बट एज आई हैव टोल्ड यू, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग. आप तो बस इक्विलिब्रियम की कंडीशंस को दमादम लगाना स्टार्ट करो. इक्विलिब्रियम की कंडीशंस क्या है? समेशन ऑफ ऑल द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस शुड बी जीरो, summation of all the vertical forces should be zero, and summation of all the moments taken about any point in the plane of the free body must be equal to zero. इन तीनों में से आप कोई सी एक, कोई सी दो या तीनों यूज में ले सकते हो. बट यू हैव टू सी इंटेलिजेंटली कि आपको कौन कौन से लेने की जरूरत पड़ रही है यहाँ पे. एनीवे, अभी इसके ऊपर मैं और डिस्कस कर सकता हूँ. आप चाहो तो ये तीनों लिख दो. जैसे कि पहले वाली इक्वेशन से क्या बनेगा आपको, व्हाट विल यू मेक आउट फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन. इसका जरा कंस्ट्रक्शन करो इस सीन में. R2 माइनस R1, नहीं हॉरिजॉन्टल, एक मिनट से. हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का सम जीरो करना है आपको इस फिगर में. R3 minus frictional force is equal to 0. बस ये पहले इक्वेशन हो गई. सेकंड इक्वेशन अप्लाई करो. R1 minus R2 is equal to 0. नो. और वर्टिकल कितनी फोर्सेस हैं आपके फिगर में? सर R2 माइनस R1 माइनस W इक्वल टू 0. Yes, upward force has to be taken as positive as per the sign conventions. तो R2 पॉजिटिव है, R1 नेगेटिव है तो माइनस R1, और W भी नेगेटिव है तो माइनस W इक्वल टू 0. ये दूसरी इक्वेशन हो गई. तीसरी इक्वेशन कैसे रीड करेंगे? अब सबसे पहले तो इसमें आपको ये डिसाइड करना है कि मोमेंट की बात आते ही पहले आपको एक पॉइंट भी लेना पड़ेगा. सो विच पॉइंट डू यू थिंक इज द मोस्ट कन्वीनियंट? किस पॉइंट के अबाउट आप मूवमेंट लेना चाहोगे? और मोमेंट अपन जनरली उस पॉइंट के अबाउट लेना पसंद करते हैं, ये भी मैं बता दूं, जिस पॉइंट से मैक्सिमम नंबर ऑफ फोर्सेस पास हो रही है, ताकि कम फोर्सेस का मोमेंट निकले. बताओ किस पॉइंट के अबाउट लेगी मोमेंट? जहाँ पे R1 की फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स और R2 की फोर्स एक साथ लग रही है. क्या ये डिस्क का सेंटर सही नहीं रहेगा? क्योंकि डिस्क के सेंटर से R1 पास हो रही है, R2 पास हो रही है, R3 पास हो रही है. सिर्फ दो फोर्सेस रह जाएगी, फ्रिक्शन और वेट. यस सर. सो टेक द मोमेंट्स अबाउट पॉइंट O. तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? द समेशन ऑफ मोमेंट्स अबाउट पॉइंट O इज बीइंग टेकन एज 0. ये देखो ऐसे स्टेट करो. अब इस स्टेटमेंट को इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिखें आप बताइए. व्हाट इज द मोमेंट ऑफ एफ अबाउट O? ये डिस्टेंस ले लेते हैं अपन. एफ की जो डिस्टेंस है ये आपके बड़े वाले पुल्ली का रेडियस है. दैट इज गिवन एज 80 mm. 80 mm को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो गया?
W का 0.08 मोमेंट लेने के लिए आपको ये डिस्टेंस चाहिए होगी, और ये डिस्टेंस कितनी है? दैट इज द रेडियस ऑफ द स्मॉलर पुली. रेडियस ऑफ द स्मॉलर पुली इज गिवन एज 50 mm. उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 0.05. दिस इज. अब लीजिए भाई, मोमेंट्स बताइए विथ प्रॉपर साइन. अगर आपको याद नहीं है तो मैं याद दिला दूं. एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स आर पॉजिटिव एंड क्लॉकवाइज मोमेंट्स आर नेगेटिव. वो पॉइंट के अबाउट सारे फोर्सेस का मोमेंट लेना है, उनको ऐड करना है और इक्वल टू जीरो पुट करना है. भाई मोमेंट ऑफ फोर्स कितनी होती है? पहले तो चलो साइन तो अपन बाद में देखते हैं, पहले तो मोमेंट ऑफ फोर्स निकालने का कॉन्सेप्ट क्या है? क्या हो गया भाई? मोमेंट निकालने पे इतना सन्नाटा कैसे छा गया? किसी को भी नहीं आता कि मोमेंट निकालना? टू न्यूटन फोर्स, पॉइंट ओ टू मीटर परपेंडिकुलर डिस्टेंस. व्हाट इज मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट पॉइंट ओ? बताओ. भास्कर. सारे के सारे मीटिंग छोड़ के चले गए क्या? Yes, sir. अश्विन, Yes, sir. Yes, sir. बताओ. इस पॉइंट के अबाउट टू न्यूटन फोर्स का मोमेंट कितना है? 2 Newton into 2 4 meter. Newton meter sir. 4 न्यूटन Yes, मीटर, sir. प्लस या माइनस? Sir plus. Sir Plus. minus. माइनस, क्योंकि ये जो रोटेशन है ये ऐसे एंटी Clockwise क्लॉकवाइज होगा sir. आएगा. माइनस 4 न्यूटन. आपको अब ये लॉजिक यूज करके यहाँ पर मोमेंट्स निकालने अबाउट पॉइंट ओ. आर थ्री ओ से पास हो रहा है तो आर थ्री का मोमेंट जीरो. आर वन ओ से पास हो रहा है, आर वन का मोमेंट जीरो. आर टू ओ से पास हो रहा है, आर टू का मोमेंट. बच गए सिर्फ डब्ल्यू और एफ एफ. आपको ये इक्वेशन बनानी है. मोमेंट्स ऑफ ऑल फोर्सेस अबाउट ओ हैज टू बी टेकन इक्वल टू जीरो. कैसे बनाएंगे बताओ? Sir, 0.08 into FF. हम्म.
ये प्लस ये है तो कि सर माइनस है? प्लस है सर, ये एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव है। मोमेंट है क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कॉज करेगी। फिर आगे माइनस 0.05 इंटू डब्ल्यू हो गया आपके इज इक्वल। मोमेंट इस चीज को इक्वल टू 0। अब देखो, आपने तीन इक्वेशंस बनाई है, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन। तो सबसे पहले तो उस इक्वेशन को टारगेट करो जिसमें W बैठा हुआ हो। एक तो ये इक्वेशन है जिसमें W है, लेकिन उसके अंदर दो अननोन है, R1 और R2। ठीक है, तो उसको बाद में करते हैं। लेट अस कम टू दिस इक्वेशन which gives us W in terms of a single variable। ठीक है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि W is equal to 0.08 upon 0.05 times the force of friction। यस सर। अब आपको प्रॉब्लम में दिया गया है व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ W। अब इस लॉजिक को देखो यहां एक्सटेंड कर सकते हो आप। आपको अगर ऐसा कोई इक्वेशन मिल जाए x इज इक्वल टू 3y और आपको कहा जाए कि मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ x, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि मेरे को x की मैक्सिमम वैल्यू तब मिलेगी जब y मैक्सिमम हो जाएगा? सीधा यस सीधा सर। लॉजिक है कि नहीं है ना? तो अब मैं ये लॉजिक यहां पर भी लगा सकता हूं कि आई विल गेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ W, क्योंकि ये चीज तो कांस्टेंट है, व्हेन आई हैव द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एट इट्स मैक्सिमम वैल्यू। तो अब मेरे को एक लॉजिक पता लग गया कि W तो मैक्सिमम तब बनेगा जब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी मैक्सिमम होगा। अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मैक्सिमम कब होता है? इट इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। किसी भी सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, पीछे को फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है, आगे को आप P लगा रहे हो। म्यू is the coefficient of friction which has to be given। नीचे को वेट mg लगता है, ऊपर को नॉर्मल रिएक्शन लगता है। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इन दिस सिचुएशन? भाई फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू की बात वापस से क्यों आ रही है? आप लोग सोचोगे कि भाई फ्रिक्शन फोर्स तो कांस्टेंट होता है, म्यू इनटू आर, पर ये मैक्सिमम और मिनिमम की क्या बात आ रही है? कांस्टेंट होता है कि म्यू आर? हमेशा एफ फ्रिक्शन ऑफ फोर्स म्यू आर के बराबर ही लिया जाता है क्या? कौन सी सिचुएशन रहती है जिसमें कि म्यू आर के बराबर नहीं होती फ्रिक्शन? फ्रिक्शनल फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू है म्यू आर, और फ्रिक्शनल फोर्स म्यू आर से कम हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर जो फोर्स लगा रहा हूँ, सपोज 1 न्यूटन लगा है, तो अब ये ब्लॉक चलना चालू नहीं हुआ है, तो इसका मतलब है कि फ्रिक्शनल फोर्स भी 1 न्यूटन है। अब मैं इस फोर्स को थोड़ा सा बढ़ा करके 2 न्यूटन करता हूँ, तब भी ब्लॉक नहीं चली, तो इसका क्या मतलब हो गया? क्या फ्रिक्शन फोर्स अपनी पुरानी 1 वैल्यू पे बैठी है? नहीं, वो चेंज होकर 2 हो गई। फ्रिक्शनल फोर्स इज इंक्रीजिंग and it will keep on increasing until it reaches this limiting maximum value। और म्यू आर से ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ नहीं सकती। तो इसलिए अपन कभी भी फ्रिक्शन की बात करते हैं, यू शुड रिमेंबर दैट म्यू इनटू आर जो अपन ने रट रखा है फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला, वो उसकी मैक्सिमम लिमिटिंग वैल्यू है, जिससे ज्यादा फ्रिक्शन नहीं हो सकती उस सरफेस पे, उससे कम तो हो सकती है। तो अब इस लॉजिक को यूज करते हुए यहाँ पर जो आप कह रहे हो कि आई विल गेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ W व्हेन एफ एफ इज मैक्सिमम, तो क्या मैं इस पूरे खेल को अब म्यू आर से रिप्लेस कर सकता हूँ कि एफ एफ की जगह पे? म्यू तो लगा देता हूँ। म्यू देखें एक बार अपन के प्रॉब्लम में दिया हुआ है क्या? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन लीवर एंड पुली इज 0.2, सो म्यू इज गिवन एज 0.2। तो म्यू को हटा देते हैं,
we put 0.2 here multiplied by, अच्छा अब रिएक्शन कौन सा लेंगे ये बताओ। यहाँ पे फ्रिक्शन हो रही है, दिस इज द प्लेस वेयर फ्रिक्शन इज ऑकरिंग। कौन सा रिएक्शन लूंगा मैं, R1 लूंगा, R2 लूंगा, R1 माइनस R2 लूंगा, ये क्या लूंगा? मेरे को फ्रिक्शनल फोर्स को म्यू इंटू आर के बराबर रखना है, लेकिन अब मेरा कंफ्यूजन ये है कि मैं आर कौन सा लूं। आपकी जहां फ्रिक्शन हो रही है सरफेस पे उसकी तरफ दो रिएक्शंस एक्ट करते हुए नजर आ रही है, एक तो R1 नीचे को दबा रही है और एक R2 ऊपर को दबा रही है। इन दोनों रिएक्शंस को साथ में लूं, अलग अलग से लूं, और अलग से लूं तो कौन सा लूं? क्या लगता है आपको? साथ में होंगे सर दो फोर्स। नहीं, अब देखो इसका लॉजिक क्या है, इसको अच्छी तरह से समझो। मैं एक फोर्स लगा करके इस ऊपर वाले ब्लॉक, ठीक है, यस सर। नीचे वाला जो ब्लॉक है उस पे भी एक रिएक्शन आ रहा है, और इस ब्लॉक का और इस ब्लॉक यस। के बीच में भी एक रिएक्शन आ रहा है R2। तो इधर जो फ्रिक्शन हो रही है इस पे मैं क्या लेता हूँ, म्यू R2 या म्यू R1 प्लस R2, बताओ। इस सरफेस पर रिएक्शन R2 है, इस सरफेस पर रिएक्शन R1। मैं फ्रिक्शन फोर्स के लिए म्यू इंटू आर करना चाहता हूँ, आर कौन सा, R2 लूं या R1 प्लस R2 लूं? वो ऑल्टो। सिर्फ R2, क्योंकि ये जो रिएक्शन है वो इस ब्लॉक का और इस सरफेस का है, जिसका कि इस ब्लॉक और इस सरफेस से कोई लेना देना नहीं है। और आपके केस में यहाँ पर एक शाफ्ट है, और इस शाफ्ट और पुल्ली का जो अंदर होल है उसके बीच का रिएक्शन है ये वाला, जिसको कि अपन R2 नाम दे रहे हैं, ठीक है। उसका और इस टॉप सरफेस का कोई लेना देना नहीं। तो इस टॉप सरफेस पे ये जो लीवर आकर के इसको घूमने से रोक रही है और इसको पीछे को जो फ्रिक्शनल फोर्स लगा रही है उसका रिएक्शन कौन सा होगा, इधर जो प्रेशर पड़ रहा है या इधर जो वर्टिकल फोर्स आ रही है वही उसका रिएक्शन होगा। सो द करेक्ट वैल्यू ऑफ रिएक्शन फॉर कैलकुलेटिंग मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स इज R1। R1 और R2 का कॉम्बिनेशन नहीं, R2 तो कतई भी नहीं, ठीक है। तो यहां पर ठीक मैं है क्या सर। लिखूंगा, एफ मैक्स जो है आई विल रिप्लेस इट विथ म्यू, जो कि 0.2 है, मल्टीप्लाइड बाय R1। अब देखो आपकी चीजें और सिंप्लीफाई हो गई। आपको अब ये पता लग गया कि मेरे को डब्ल्यू मैक्स निकालने के लिए बस एक पैरामीटर चाहिए R1, आई नीड ओनली दैट, ठीक है। अब आपको R1 की तलाश, क्या R1 इन दो इक्वेशंस में से आप निकाल सकते हो क्या? भाई एक इक्वेशन तो अपन ने यूज कर ली मोमेंट्स वाली, और उससे डब्ल्यू मैक्स का रिलेशनशिप निकाल लिया और ये पता किया कि वो R1 पे निर्भर करती है। अब अपन को R1 चाहिए। आपने दो इक्वेशन और बना के रखी हुई थी, इन दोनों में से आपको R1 मिलेगा क्या, ये देख के बता दो। अब यहाँ पर आप एफ एफ की जगह पर एक चीज और कर सकते हो, यू कैन इंस्टेड ऑफ एफ एफ यू कैन पुट म्यू R1।
R1 मिलेगी इससे? देखो सिंपल नियम है, आप तो नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल काउंट करो, नो ठीक है, सर। और नंबर ऑफ इक्वेशंस काउंट करो। अगर नंबर ऑफ इक्वेशंस नंबर ऑफ अननोन से कम है तो सवाल ही नहीं उठता कि आपका वो सोल्यूशन मिलेगा। तो यहाँ पर आपका सोल्यूशन नहीं है। सो नाउ whether you want it or not, you have to go and draw the free body diagram of the lever also. तो अब क्या करेंगे, अपन लीवर का फ्री बॉडी डायग्राम। अब लीवर की कॉन्टैक्ट्स कहाँ कहाँ पर है? एक तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट हो रहा है, एक फोर्स यहाँ पे रखी हुई है, और यहाँ पर हिंज है। तो इसका मतलब है यहाँ पर रिएक्शंस आएंगी। सो देर आर 3 पॉइंट्स एट विच फोर्सेस कैन ऑकर ऑन द लीवर, ये और ये। अब अपन बनाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। बस इतना सा बनाना है लीवर। द डाउनवर्ड एक्टिंग फोर्स P, ये तो है ही, साफ साफ दे रखा है 5 किलो न्यूटन, सो आई विल पुट इट एज 5000 न्यूटन। अब ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, हाफ मीटर अवे फ्रॉम द फोर्स, दिस पॉइंट। अब देखो फ्री बॉडी डायग्राम का कॉन्सेप्ट ये होता है कि यू ड्रॉ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी, नॉट द फोर्सेस एनैक्टेड बाय द बॉडी। यानी कि बॉडी जो फोर्स लगा रही है वो नहीं बनाते, आप वो फोर्सेस लगाते हो या वो फोर्सेस बनाते हो जो बॉडी पे लग रही है। तो अब मैं आपको दो ऑप्शंस देता हूं, ये देखो, आपने ऑलरेडी यहां पर ये देखा था कि लीवर जो है वो पुल्ली को R1 फोर्स से प्रेस कर रही है, ये आपने बनाया था, ठीक है। तो अब मैं R1 की फोर्स यहां पर बनाऊंगा, उसी सेम फोर्स से पुल्ली जो है ये लीवर को ऊपर को पुश करेगी। तो मैं R1 को यूं बनाऊं या यूं बनाऊं, कौन सा सही है? अप साइड वाला सर। अप साइड वाला बनाऊंगा, बिकॉज इफ द लीवर इज पुशिंग द पुल्ली डाउन विद द फोर्स ऑफ R1, दैट R1 बिकम्स द फोर्स एक्टिंग ऑन द पुल्ली। तो डाउनवर्ड R1 तो पुल्ली पे एक्ट कर रही है, और पुल्ली जो है चूंकि नीचे नहीं जा पा रही, तो एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट द पुल्ली विल पुश द लीवर बैक इन द अपवर्ड डायरेक्शन विद द सेम फोर्स R1 by applying Newton's third law. To every action there is an equal and opposite reaction. तो ये R1 जो लीवर पर लग रही है वो अपवर्ड डायरेक्शन में, ओके। और कौन सी यस सर। फोर्स है, और कौन सी फोर्स है, फोर्सेस बताओ लीवर पर, और कौन सी फोर्स है? अपन हिंज पे बाद में आएंगे, हिंज पे मैं बाद में आता हूं, आप हिंज को तो अभी फिलहाल छोड़ो। आप तो मेरे को ये बताओ, दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इस पॉइंट का तो गेम ओवर हो गया, इस पे एक ही फोर्स है, दैट इज ओवर। मेरे को ये बताओ इस पॉइंट पे कोई और फोर्स है क्या? इज देयर एनी अदर फोर्स दैट यू आर फॉरगेटिंग? फ्रिक्शनल वाली भी तो है सर। एब्सोल्युटली राइट, वेरी गुड। फ्रिक्शनल फोर्स भी लग रही है भाई, जब रॉड के यहाँ पे प्रेस होने से आपकी डिस्क फ्रिक्शन के कारण नहीं घूम पा रही, तो वो फ्रिक्शनल फोर्स इस रॉड पर भी तो लगेगी पुल्ली के कारण। अब मेरे को ये बताओ आप सोच करके कि वो फ्रिक्शनल फोर्स रॉड पर यानी लीवर पर पुल्ली के द्वारा इस डायरेक्शन में लगेगी या लेफ्ट साइड में लगेगी? सर लेफ्ट साइड में। नो, पुल्ली किधर को घूमने की कोशिश कर रही है? लाइक सर राइट में। राइट आगे में से लगेगी। और अगर आपको आपको अगर इस तरह से कंफ्यूजन हो तो आप तो सीधे यही देख लो ना कि आपने फ्रिक्शनल फोर्स पुल्ली पे किधर बनाई थी, लेफ्ट साइड पे बनाई थी, तो यही सेम फ्रिक्शनल फोर्स ही तो लग रही है आपके लीवर पर भी। यस सर। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स जब लीवर पे बनाओगे तो उल्टा ही बनाओगे ना। यस सर। यस यस सर। So the value or rather the direction of frictional force FF is here। और अब की बार मैं FF को FF नहीं लिखूंगा, अब मैं ऑलरेडी ये पता कर चुका हूं
कि मेरी एफ एफ कितनी है, 0.2 R1 है। तो अब मैं इसको सीधे ही 0.2 R1 लिख देता हूँ। ठीक है, ये हो गई मेरी फ्रिक्शनल फोर्स इन दिस डायरेक्शन, ये लीवर पे हो गई। अब आते हैं अपन, व्हाट विल बी द रिएक्शंस एक्टिंग ऑन द हिंज पॉइंट एट द लेफ्ट साइड। अब इस पे आते हैं। अब यहां पर आपको पता है कि कोई एक्सटर्नल फोर्स तो आपने लगाई थी नहीं, तो जो भी फोर्सेस आएंगी वो रिएक्शनल फोर्सेस आएंगी। तो अब आप मेरे को, जैसे मैंने पुली में आपको रिएक्शन शाफ्ट में बनाना सिखाया था, तो आप बताओ इस पे मैं रिएक्शंस कैसे बनाऊं एट दिस पॉइंट, हाउ डू आई ड्रॉ द रिएक्शन। बैलेंस ऑफ फोर्सेस देख लेना। क्या हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आएगा क्या इस पे? हिंज पे हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आएगा या नहीं? सर हॉरिजॉन्टल रिएक्शन हम्म, नहीं आएगा। क्या कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है रॉड पे? सर यही है सर 0.2 R1 सर, ये मूव R1 वाली। और तो कौन सी इसके, है? तो इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए रिएक्शन फोर्स नहीं आएगी? यस सर, यस सर। भाई ये आप पुली, मैंने इसीलिए आपको कहा था कि आप पुली वाले एग्जांपल से समझना इसको। मैंने ये कहा था देखो यहाँ पर कि पुली पे एक लेफ्ट फोर्स अकेली बैठी थी, तो उसको बैलेंस करने की रिएक्शन फोर्स आपने शाफ्ट पे बनाई थी राइट साइड पे। ठीक है, और उसी तरीके से ये अपवर्ड R2 फोर्स आपने कैसे गैस किया? आपने ये देखा कि पुल्ली के ऊपर R1 नीचे को लग रहा है, W नीचे को लग रहा है, तो पुल्ली इक्विलिब्रियम में आएगी कैसे? कोई अपवर्ड फोर्स होनी तो चाहिए। तो वो अपवर्ड फोर्स आपने R2 पर शाफ्ट पे लगाई थी। अब वही सेम लॉजिक की तो आप यहाँ पर भी लगाओगे। आप ये कह रहे हो कि भाई फ्रिक्शन के कारण हो चाहे किसी भी कारण से हो, आपके रॉड पे एक राइट साइड को फोर्स लग तो रही है, लेकिन रॉड तो इक्विलिब्रियम में है। तो इक्विलिब्रियम में अगर है, तो जहां पर भी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होंगे उसमें कहीं ना कहीं पे एक लेफ्ट साइड की फोर्स भी जरूर होगी। तो दिस इज अ हॉरिजॉन्टल रिएक्शन विच यू विल सी ऑन द हिंज पॉइंट। अब चूंकि आपने कौन कौन से आर यूज कर लिए, R1 R2 R3 यूज कर चुके हो, तो अब इसको अपन एक काम करते हैं, R4 नाम दे देते हैं। भाई रिएक्शन है तो R यूज कर रहा हूँ, और नंबरिंग के हिसाब से देखूं तो दो रिएक्शन, तीन रिएक्शन आ चुके हैं, तो R4 नाम दे देता हूँ। अब दूसरी बात है, क्या इसमें वर्टिकल रिएक्शन आएगा? हिंज पे वर्टिकल रिएक्शन आएगा कि नहीं आएगा? सर आएगा। आएगा। कौन से डायरेक्शन में आएगा, अपवर्ड या डाउनवर्ड? सर डाउनवर्ड। डाउनवर्ड डायरेक्शन इज द राइट आंसर। आप बताओ क्यों आपने बताया कि डाउनवर्ड है? आई विल नेम इट एज R5। व्हाई इज इट डाउनवर्ड? सर क्योंकि सर वो ऊपर वाली जो सर, ये जो 5000 वाली सर, ये भी नीचे लग रही है, और सर ये रिएक्शन फोर्स जो ऊपर की तरफ लग रही है सर, ऑब्वियसली इससे छोटी होगी तो रिजल्टेंट भी नीचे ही आएगा समवॉट। नहीं, ये नहीं कह सकते अपन इसको कि ये छोटी होगी, बल्कि मैं तो कहूंगा कि R1 जो है वो 5000 से ज्यादा है। ये सर ये आपने कल बताया था ना सर, वो एग्जांपल से। अच्छा, इसको मैं आपको एक दूसरा तरीका बताता हूँ। सी, यू विल अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ कॉन्सेप्ट्स इन मैकेनिक्स फ्रॉम दिस एग्जांपल। एक खूंटी है ट्रायंगुलर शेप की, ठीक है। आपने एक डंडा ले लिया, उसको बिल्कुल सेंटर पे बैलेंस कर लिया। अब आप इसको यहाँ पे प्रेस कर रहे हो, ठीक है। तो इसको जब यहाँ से प्रेस करोगे, तो ये वाला जो पॉइंट है, ये किधर को चलने की कोशिश करेगा, ऊपर को या नीचे को? ऊपर को सर। ये ऊपर को चलने की ऊपर को। कोशिश करेगा। और यहाँ पर जो आपने हिंज लगा करके इसको रोक रखा है, अगर ये डंडा ऊपर जाने की कोशिश करे, तो ये हिंज
इसको रिएक्शन के तौर पे किधर जाने से रोकेगा, नीचे को फोर्स लगा करके रोकेगा, ये से नीचे फोर्स लगा। है ना. सो वी कैन से दैट व्हेन यू अप्लाई अ फोर्स ऑन अ लीवर with a fulcrum at any point in the length of the lever, the reaction at the hinge will be in the same direction as that of the applied force. समझ में आ गया आपको? यस सर. तो अब मैंने इस लॉजिक को यूज करते हुए R5 नीचे को बना दिया. नाउ आई एम कॉन्फिडेंट दैट आई हैव ड्रॉन ऑल द फोर्सेस ऑन द लीवर. फ्रिक्शनल फोर्स आ गई, अप्लाइड फोर्स आ गई और सारे रिएक्शंस आ गए. ठीक है. अब वापस से यही बात है, अपनी तहकीकात ऑलरेडी इस लेवल पे पहुंच चुकी है कि डब्ल्यू मैक्स पता करने के लिए सिर्फ और सिर्फ R1 चाहिए. बाकी सारे रिएक्शंस अपने लिए बेकार है. R3 नहीं चाहिए, R2 नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए अपने को. यहाँ पर R5 नहीं चाहिए, R4 नहीं चाहिए. वी सिंपली वांट R1. तो अब आप मेरे को एक इंटेलिजेंट तरीका बता दो. देखो इस पे भी आप वो सारी चीजें लगा सकते हैं. You are permitted to use sum of all horizontal forces 0, sum of all vertical forces 0, and sum of moments about any point equal to 0. ये तीनों इक्वेशंस आपके लिए परमिटेड है क्योंकि ये लीवर इक्विलिब्रियम में है. लेकिन जहां तक मैं देख पाता हूं, मेरे को सिर्फ एक इक्वेशन चाहिए और सटीक रूप से मेरे को R1 की वैल्यू इसमें से मिल जाएगी. तो कैन यू गेस व्हिच इक्वेशन इज दैट? मोमेंट इज इक्वल टू 0. यस. आप इन दोनों इक्वेशंस को अवॉइड कीजिए और सीधे सीधे मोमेंट वाले इक्वेशन को लीजिए. और अब मोमेंट की इक्वेशन ले रहे हो तो अब पॉइंट भी चाहिए. कौन से पॉइंट पे लूं? R1 R5 जिधर R4 और R5 जहां लग रहे हैं. लेट अस नेम दिस एज पॉइंट ए. ठीक है. तो पॉइंट ए के अबाउट में मोमेंट्स को लूंगा तो मेरे को क्या फायदा हो रहा है, R4 और R5 के मोमेंट तो जीरो हो जाएंगे, तो वो मेरे इक्वेशन में आएंगे ही नहीं. So the next equation that I'm going to apply in order to obtain my R1 is summation of all the moments of forces taken about point A. I'm going to put equal to 0. ये लगाने जा. ठीक है. तो अब आप जल्दी से फटाक से मेरे को इसकी ये इक्वेशन बना करके बता दो क्या है. कितनी फोर्सेस हैं इसमें टोटल? 1 2 3 4 5 फोर्सेस दिख रही है, जिसमें से जहां तक मैं देख पा रहा हूं R4 A से पास हो रही है तो इसका मोमेंट नहीं निकलेगा. R5 A से पास हो रही है, इसका मोमेंट नहीं निकलेगा. पॉइंट टू R1 भी इस पॉइंट से निकल रही है तो इसका भी Yes, sir. मोमेंट नहीं निकलेगा. जीरो हो जाएगा. यस सर. कुल मिलाकर के दो फोर्सेस रह गई जो कि ए पॉइंट से पास नहीं हो रही. अब इनकी मोमेंट्स के लिए आपको डिस्टेंसेस भी चाहिए होंगी. ये देख लो डिस्टेंसेस. ये पॉइंट है जहां पर रिएक्शन लग रहा है आपका, तो ये तो 1 मीटर दूर है और P जो लग रहा है वो 1.5 मीटर दूर है. So let us take the values of the distances. This is 1 meter. This is 1.5 meter. बताइए क्या इक्वेशन है? प्रॉपर साइन करना है इनके साथ. सर R1 minus 5,000 into 1.5. इक्वल टू zero. मिल गया R1. Yes, sir. अब बताओ what is the value of W max? R1 is equal to 7,500. 500. यस सर. ठीक है. न्यूटन्स. और R1 और W का क्या रिश्ता है? ये रहा. R1 is 7,500. बता दो भाई आंसर W max का. सर 2400. Yes, this is the right answer. 2,400. न्यूटन.
तो ये क्वेश्चन जैसा आपने देखा मुश्किल नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्चुअल बहुत है। इसमें पहली बार मेरे को लगता है अपन ने क्लास में जितनी भी प्रॉब्लम्स डिस्कस किए उसमें से काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लेवल पे रिएक्शंस का इन्वॉल्वमेंट। तो ये एक अच्छी बात थी कि ये अपन ने क्वेश्चन सॉल्व किया, जिससे कि आपको बहुत क्लैरिटी मिल गई कि किस तरीके से रिएक्शंस को लगाया जाता है। ठीक है, एनीवे वी विल स्टॉप हियर। और ये क्वेश्चन क्लियर हो गया पूरा आपको अच्छी तरह से, आई होप। Yes, sir. ठीक है, कल की क्लास में सुबह 8 बजे ही है कल की क्लास भी, सो बी प्रिपेयर्ड। और कल अपन आगे वाला क्वेश्चन करेंगे। आई विल टेक योर अटेंडेंस एंड लेट यू गो। हाँ